था अपने आप से कि हम कश्मीर को तामीर व तरक्की की राह पे आगे ले जाएंगे और आने वाले वक्तों में, आने वाले बरसों में जब हिस्टोरियन कश्मीर की तारीख रकम करेगा तो ये लम्हात उसमें रकम जरूर होंगे सुनहरी हरूफ से। दरिया झेलम के किनारे को, रिवर फ्रंट को बेहतर से बेहतर बनाने की एक कोशिश है ये आज की तकरीब। इसको और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा जाज़िब नज़र बनाने की कोशिश है और वो वक्त दूर नहीं है कि आज इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जा रहा है और वो वक्त दूर नहीं है कि जब इस दरिया के किनारे कश्मीर के लोग, टूरिस्ट तो खैर यहाँ आते रहते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में, लेकिन कश्मीर के लोग खुद अपने घरों से बाहर आके इस दरिया के किनारे बैठा करेंगे, फुर्सत के लम्हात गुजारा करेंगे और फिर इस वक्त को याद करेंगे कि जब इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया था। यकीनन ये जो लम्हा है ये तारीख साज है और मैं चाहता हूँ कि ये लम्हा और ज़्यादा खूबसूरत बने आप सबकी ज़ोरदार तालियों से। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के कमिश्नर और जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री अत्थर आमिरुल शफीक खान के आए और आप सबका बाज़ाबिता वालिहाना इस्तकबाल करें। श्री अत्थर आमिरुल शफीक खान। Honorable Chief Guest and Honorable Lieutenant Governor of J&K, Shri Manoj Sinha ji, Honorable Mayor Srinagar, Shri Junaid Azim Mattu, Honorable Chief Secretary J&K, Dr. Arun Kumar Mehta, Commissioner Secretary Jal Shakti Shri M. Raju, Divisional Commissioner Kashmir and Chairman Srinagar Smart City Limited, Shri Pandurang K. Pole sir, respected dignitaries and guests, a very good afternoon to everyone. It's my privilege to welcome our Honorable Chief Guest, Lieutenant Governor of J&K, Shri Manoj Sinha ji, to this historic occasion of laying of the foundation stone of the first phase of Jhelum Riverfront Development Project. It is the vision of Honorable Lieutenant Governor to see the massive urban transformation of the Srinagar city, of which this project, the River Jhelum project and the water transport project forms one of the essential components. Honorable Lieutenant Governor sir has been personally involved in overseeing and monitoring the work that Srinagar Smart City is being doing. And sir, your presence is a huge encouragement and support to the whole team and whole of Srinagar City. I would also like to welcome Shri Junaid Azim Mattu sir, the Honorable Mayor of Srinagar, who has been a constant support to us. I would like to welcome our worthy Chief Secretary Dr. Arun Kumar Mehta sir for gracing the occasion. Sir, you have been continuously supporting, encouraging and guiding us. And in fact, sir, your last visit a month back has been one of the major points in the overall conceptualization of this project. I would also like to welcome Secretary Jal Shakti Government of J&K, Shri M. Raju sir, the Divisional Commissioner of Kashmir and Chairman Srinagar Smart City Board, Shri Pandurang K. Pole sir, Inspector General Kashmir Vijay Kumar sir for gracing the occasion. I would also like to welcome DC Srinagar, Ajaz Asad, Shri Ajaz Asad Saab, and also the SSP Srinagar Rakesh sir for joining us. Sir, Srinagar Smart City is implementing projects in broad 8 categories. One of the most integral components is the riverfront development and water transport, which you have been kind enough to inaugurate to lay the foundation stone today. The other projects include urban revival of old city and heritage development, development of the central business district of Srinagar, urban mobility and street upgradation, information technology interventions, majorly the ICCC, the Srinagar Smart Traffic Management System and Srinagar Data Network. Besides that, the urban beautification and green Srinagar projects. These all 8 verticals have been synchronized and planned in such a way that they, in a harmonious manner, they turn towards the broader urbanism of the urbanization and urban transformism of the Srinagar city. The riverfront development project, whose foundation stone has been laid today, will pave way for making River Jhelum again the central spine of activity, central spine of tourism, recreation and commerce in the city. The major components that have been taken up under this project are development of accesses and markets which are on and towards the riverfront, landscaping and beautification of both the banks of the river,
undergrounding of all the utilities, including power and communication lines on the riverfront, and also development of recreational and activity spaces all along the river. Implementation of directional signages and information signages have also been taken up. Besides the development of walkways and cycle tracks on the riverfront. We are very hopeful that with this project will act as a catalyst in creating more prosperity and development in the city of Srinagar, and will act as a landmark and one of the must-visit places for anybody who is coming to our city, besides being a huge source of livelihood and economic activity for the citizens of Srinagar. I would once again welcome our chief guest, Honorable Governor Sir, and dignitaries to the occasion. Thank you so much. Sir, ये project already हमने we have already tendered it out, and we are hopeful that in next 6 to 7 months we will execute this project, sir. थैंक यू वेरी मच इंडीड अफसर साहब। कहते हैं कुछ हकीकतों का अगर खुले मन से और खुले दिल से और खुले जहन से एतराफ़ किया जाए तो इंसान को ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आता है, और हमें इस हकीकत का एतराफ़ करना पड़ेगा। वी मस्ट एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि पिछले 2-2.5 साल के दौरान जिस पैमाने पे और जिस रफ्तार से तरक्की हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, वो अपनी मिसालात है, और वो यकीनन गैर मामूली रफ्तार है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रफ्तार है। और उस सिलसिले में एक और इवेंट का आशीर्वाद हमें हासिल है कि इस वक्त पूरे मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के बरस में ये सब काम हो रहे हैं, इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है। मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब से कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। Honorable Lieutenant Governor Sahab, Shri Manoj Sinha ji, Shri Junaid Mattu, Mayor श्रीनगर, यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव और अफसर, म्युनिसिपल कमिश्नर और सारे सीनियर ऑफिसर्स, और खास करके यहाँ के जो लोग हैं आवाम, ये जो रिवर फ्रंट का काम शुरू किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। रिवर फ्रंट के बारे में डिस्कशन जब होगी तो उसके साथ साथ जुड़ेगा यहाँ पे क्रूज़ का सिलसिला, और मुझे उम्मीद है कि आप क्रूज़ को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और जब ये रिवर फ्रंट डेवलप हो जाएगा और क्रूज़ डेवलप हो जाएगा और जो लाइटिंग अरेंजमेंट आप ब्रिजेस पे कर रहे हैं, तो उन तीनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे एक नई अट्रैक्शन पैदा होगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से पेरिस में लोग क्रूज़ पे जाते हैं, जिस तरह से लोग यूरोप की सिटीज़ में क्रूज़ पे जाते हैं, वैसे ही क्रूज़ की व्यवस्था यहाँ पे भी होगी, और ताकि लोग यहाँ पे जो श्रीनगर में आए तो उनके पास डल के अलावा भी कुछ और भी अट्रैक्शंस हो। ये दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, शाम के वक्त जब पिछली बार हमने लाइट्स देखे थे यहाँ पे जब ब्रिजेस पे, तो वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। और जिन लोग जीरो ब्रिज पे आप लोग गए हो अगर, तो आपने देखा होगा कि लाइट के आने से कितनी बेहतरीन चीज़ लगती है वो। तो जब ये सारा एक सिलसिले में जुड़ जाएगा तो यहाँ की शक्ल बदलेगी। इस साल ये काम पूरा करना है और क्रूज़ को पूरा करके हमें एक नई चीज़ पैदा करनी है, और 2022 में ये चीज़ पूरी हो जानी चाहिए। और जब आप रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे तो दोनों साइड में फ्लावर्स ऐसे लगने चाहिए कि जब भी लोग क्रूज़ पे निकले तो उनको खूबसूरती नज़र आए, जो उनको नज़र आनी चाहिए। एक और चीज़ बोलूँगा कि डल इस साल क्लीन होगा। लास्ट ईयर हमने 1/3 क्लीन किया था, इस साल पूरा क्लीन करेंगे। और डल में हमेशा से यह बात होती रही कि एक्सपर्ट आते रहे जाते रहे, डल क्लीन नहीं हुआ, लेकिन इस साल डल क्लीन होगा। एक चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो डल में जो शिकारे वाले हाउस बोट ओनर्स हैं, उनकी एक प्रॉब्लम थी कि उनका जो सीवेज तक कहाँ जाएगा, उसकी व्यवस्था जून के पहले तक कर दी जाएगी, और वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो एक डल के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि डल का पानी बहुत गंदा है, ऐसा नहीं है। सीवेज की प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व की जाएगी, पर डल का पानी उसकी पीओडी वैल्यू ज़्यादा जगह में 6-7 के आसपास है, नॉट दैट बैड, और डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह जनरली ठीक है। तो अगले इस 2022 के साल में डल क्लीन होगा और झेलम पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, क्रूज होगा, और श्रीनगर एक नए आयाम को प्राप्त करेगा। स्मार्ट सिटी में जो आप काम कर रहे हैं उसको अब मुकम्मल करने का वक्त आ गया है।
पर स्मार्ट सिटी तभी होगा जब पूरा सिटी स्मार्ट दिखे, और दिस जॉइंटेड प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करके नहीं होता है, वो सबको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट किया जाए, और उन सबको लेकर के जब तक फसाद डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे और उसके लिए आपको आवाम की जरूरत पड़ेगी। जो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, अगर सब मिलके जोड़ें तो श्रीनगर खूबसूरत ऑलरेडी है, पर श्रीनगर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में वो ये हमें अचीव करना चाहिए। और इस साल हम उम्मीद रखेंगे कि आवाम के साथ बात करके हम लोग श्रीनगर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनाएं। मुझे यही उम्मीद है। थैंक्स अ लॉट। So thank you very much indeed for these inspiring thoughts. श्री सिक्स साहब ने फरमाया कि इस अमल में श्रीनगर को और ज्यादा जाज़िब नजर बनाने के अमल में और एक स्मार्ट सिटी बनाने के अमल में हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है, और यकीनन कामयाबी और कामरानी और तरक्की, हकीकी तरक्की तभी पॉसिबल होती है जब लोग साथ हों। और जो अभी हमारी क़यादत है, हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हर कदम पे हमारे साथ हैं। कश्मीर के बारे में जो कुछ पुराने वीडियोस दिखाई पड़ते हैं फेसबुक वगैरह पे और कई बार यूट्यूब पे, उसमें जेहलम के ताल्लुक से जो वीडियोस होते हैं बहुत खूबसूरत हैं कि जेहलम में लोग जा रहे हैं क्रूज़ पे, वो पुराने तरह का क्रूज़ था, पुराने तर्ज का क्रूज़ था, और या जेहलम के किनारों में बैठे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो दिन लौट के आएंगे, खुशहाली के, फरहत के, फारिग-उल-बाली के वो दिन लौट के आएंगे। और चूंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ वो दिन लौट के आएंगे बल्कि उन दिनों में चांद लगेंगे, वो दिन लौट के आएंगे तो एक नई जिला के साथ, नई जिंदगी के साथ लौट के आएंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। अब मेरी गुजारिश है शहर श्रीनगर के मेयर श्री जुनैद अजीम मत्तू साहब से कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। श्री जुनैद अजीम मत्तू। इज्जत माब जनाब मोहतरम एलजी साहब, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, आज की इस तारीखी महफिल में मौजूद सीनियर अफसरान हजरात, इज्जत माब कॉरपोरेटर साहिबान, मीडिया से आए हुए हमारे दोस्त खवातीन हजरात, आज के इस तवारीखी दिन पे मैं आपका खैर मकदम करता हूं और इसको शहर श्रीनगर के लिए एक खुशाइन बात समझता हूं कि ऐसे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव श्रीनगर के अवाम के लिए पाए तकमील तक पहुंचाए जा रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा जी ने किया है और जिन प्रोजेक्ट्स की नींव उन्होंने डाली है, वो श्रीनगर में ईज ऑफ लिविंग की बेहतरी में एक बहुत अहम पहल है। साबित कदमी और ईमानदारी से मौसूल हुए इन प्रोजेक्ट्स का मकसद लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। श्रीनगर में बर्फ गिरना ऑनरेबल एलजी साहब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं थी। हर साल बर्फबारी होती थी और अब तक बदकिस्मती से 70 साल से भी ज्यादा गुजरने के बाद किसी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि करीबन 15 लाख की आबादी के शहर में, जिसकी गलियां और कोचे लेन्स और बाइलेन्स 1400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, उस शहर में बर्फ कैसे उठाई जाए। मेरी ज़ाती ख्वाहिश और कोशिश हमेशा ये रही है कि श्रीनगर के इदारों की, खासकर एसएमसी की कैपेसिटी बिल्डिंग में जोर आए। ऑनरेबल एलजी सर, एज एन अर्बन लोकल बॉडी, practically the urban local government of the city of Srinagar, it was a matter of shock and shame for us that we had no system in place for snow clearance. Today is a momentous occasion where we have finally achieved perhaps the best snow clearance mechanical capacity in the entire subcontinent, where more than 40 specialized snow clearance machines are being dedicated by you, sir, to the people of Srinagar. इसी तरह ऑनरेबल एलजी सर, श्रीनगर में एटीएस कंट्रोल रूम का इनेकाद शहर में बेहतर और साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट के इरादे को हकीकत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। चाहे वो इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम ILTS हो या रोड जंक्शन इंप्रूवमेंट की इनिशिएटिव्स हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स श्रीनगर में ट्रैफिक रेगुलेशन और मैनेजमेंट में एक अहम किरदार अदा करेंगे। हमारे शहर की आबादी जब दुगनी भी हुई, किसी पिछली हुकूमत ने ये गवारा नहीं समझा, ये जरूरी नहीं समझा
कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और ऑगमेंट किया जाए, वो ट्रैफिक हो, अर्बन कंजेशन हो या अर्बन हाउसिंग के मसाइल हो, इन सब लेगेसी इश्यूज को साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली रिजॉल्व करना हमारे लिए एक बहुत अहम लक्ष्य है। इसी तरह पोलो व्यू मार्केट को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पेडेस्ट्रियन वॉकिंग मॉल बनाने का इरादा और ख्वाब, उसको आज पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऑनरेबल एलजी सर, मुझे इस बात को कहने में बेहद खुशी हो रही है कि आज से कुछ एक साल पहले मैंने कमिश्नर एसएमसी और सीईओ स्मार्ट सिटी और उनकी काबिल टीम के साथ ये कंसेप्ट शेयर किया, डिस्कस किया कि श्रीनगर सिटी सेंटर में कोई ऐसी रिटेल स्पेस या फैमिली एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है जहां शाम को लोग अपने परिवार के साथ जाकर टहल सके, टूरिस्ट टहल सके, शॉपिंग कर सके और बाहर खाना खा सके। ये टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी एक अहम एलिमेंट ऑफ अर्बन डिजाइन है। स्मार्ट सिटी की टीम ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और रिकॉर्ड टाइम में इसको कंसेप्चुअलाइज भी किया और इसके डिजाइन प्रोसेस को मुकम्मल भी किया। Today's foundation stone laying ceremony of the Polo View project by the Honorable LG Sir is a testament to the fact that good things happen for a city when we explore good ideas that we can emulate from the rest of the country and the rest of the world. Similarly, Honorable LG Sir, the Riverfront Development Project, the complete transformation of the Jhelum Riverfront, is a beautiful, historic and transformational project that will add to the glory and beauty of the historic city of Srinagar. A city with great historicity and a city we all are working to transform into a truly world-class modern tourist city. साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से प्रेरित ये प्रोजेक्ट श्रीनगर के बीचों बीच एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जो ऐसे और बहुत सारे इनिशिएटिव्स के लिए एक आर्किटाइपल एग्जाम्पल बनेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रोजेक्ट को तयशुदा डेडलाइन से पहले मुकम्मल किया जाएगा। श्रीनगर में पेडेस्ट्रियन मॉल्स, साइकिल ट्रैक्स, मॉडल म्युनिसिपल मार्केट्स, सूक्स, फ्ली मार्केट्स और जदीद तर्ज पर बनी हुई पब्लिक पार्क्स और ओपन एयर जिम्नेजियम्स, ये सब इनिशिएटिव्स यहां की सोशल लाइफ, टूरिज्म कोशंट और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बेहतरी में तवारखी इकदामात हैं। मैं एक बार फिर आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी निगरानी में श्रीनगर शहर को एक आलमी सतह का टूरिस्ट शहर बनाने का ख्वाब आज ताबीर की तरफ रवाना हो चुका है।